નમસ્તે, મજામાં છો બધા? મને વિશ્વાસ છે કે તમે બધાએ આપણે આગલા ભાગમાં જે પ્રયોગ કરેલો એ તમે કરી જોયો હશે અને તમે જ્યોતનું અવલોકન પણ કર્યું હશે. 3 અલગ અલગ પરિસ્થિતિમાં જ્યોતનું અવલોકન કરીને કદાચ તમે નક્કી કરી શક્યા હશો કે આવું કેમ થાય છે. તો ચાલો હું તમને કહું. જ્યારે આપણે પહેલી પરિસ્થિતિમાં મીણબત્તીને ગોઠવેલી કે જ્યારે બોટલમાં બંને બાજુથી હવા આવજા કરી શકે ત્યારે જ્યોત એમની એમ જ રહેલી, એટલે કે એને પૂરતી હવા મળતી હતી. બીજી પરિસ્થિતિમાં જ્યારે આપણે નીચેથી સ્ટેન્ડ હટાવી લીધું, એટલે કે નીચેથી હવા મળતી બંધ થઈ ગઈ, માત્ર એક જ બાજુથી હવા મળતી હતી, ત્યારે જ્યોત થોડી ડગબગવા લાગી. જો તમે લાંબો સમય સુધી આ રીતે મૂકી રાખશો તો ધીમે ધીમે જ્યોત ઘટતી જાય છે, કારણ કે તેને હવાનો પુરવઠો ઓછો મળવા લાગ્યો. અને ત્રીજી પરિસ્થિતિમાં જ્યારે આપણે બોટલનું ઢાંકણ બંધ કરી દીધેલું ત્યારે થોડી જ વારમાં મીણબત્તી ઓલવાઈ જાય છે. જો તરત નથી ઓલવાતી, થોડી વારમાં ઓલવાય છે, બરાબર? એટલે હવે બહારથી હવા મળતી બંધ થઈ ગઈ. જ્યાં સુધી બોટલમાં હવા હતી ત્યાં સુધી એ મીણબત્તી ચાલુ રહે છે. હવે હવા હતી એટલે શું? આપણે દહનની વ્યાખ્યા જોઈ કે કોઈ પણ પદાર્થના દહન માટે ઓક્સિજન જરૂરી છે. તો આ હવાની અવરજવર કે હવા હતી ત્યાં સુધી એનો અર્થ થાય છે કે ઓક્સિજન જ્યાં સુધી મળે ત્યાં સુધી. એટલે છેલ્લી પરિસ્થિતિમાં બોટલનું ઢાંકણ પણ બંધ કરી દીધા પછી થોડી વાર મીણબત્તી ચાલુ રહી અને પછી બુઝાઈ જાય છે, કારણ કે બોટલમાં હાજર રહેલો ઓક્સિજન જ્યાં સુધી મીણબત્તીને મળશે ત્યાં સુધી તે ચાલુ રહી શકે, અને જ્યારે તેને ઓક્સિજન મળતું બંધ થઈ જાય એટલે બુઝાઈ જાય, બરાબર? તો હવે તમે સમજ્યા હશો કે કોઈ પણ પદાર્થના દહન માટે પૂરતી હવા જરૂરી છે, એટલે કે હવામાં રહેલો ઓક્સિજન જરૂરી છે. કેટલી નવાઈની વાત છે કે કોઈ પણ પદાર્થના દહન માટે ઓક્સિજન જરૂરી છે, મીણબત્તીને સળગાવવા માટે પણ ઓક્સિજન જરૂરી છે. પણ જો બહુ વેગથી હવા જતી હોય, એટલે કે જો પવન આવતો હોય તો મીણબત્તી બુઝાઈ જાય છે, ત્યારે એને ઓક્સિજન પણ મળે છે. છે ને નવાઈની વાત? હવે તમે ક્યારેક એવું જોયું હશે કે કોઈ વ્યક્તિ જ્યારે દાઝી જાય ત્યારે તેને ધાબળામાં લપેટી દેવામાં આવે. હવે તમે સમજી શકશો કે આવું કેમ થાય છે, બરાબર ને? અચ્છા, હવે મને એમ કહો કે દિવાસળી જો એમને એમ પડી હોય તો સળગે છે? નહીં. પણ જો તેને બાકસની ધાર સાથે આપણે ઘર્ષણ કરીએ તો એ સળગવા લાગે. આવું કેમ થાય છે? જો આ દિવાસળી એમને એમ નથી સળગતી, પણ જ્યારે આ ધાર સાથે તેનું ઘર્ષણ કર્યું સળગવા લાગી. પણ એ ધારની સાથે હું પ્લાસ્ટિકનો ટુકડો ઘસું છું, એ નથી સળગતો. આવું કેમ થયું? તમે જોયું કે દિવાસળીને ધાર સાથે ઘસવાથી એ સળગવા લાગી. તો એ ધારમાં કોઈ રાસાયણિક પદાર્થ હશે, પણ સાથે સાથે જે ઘર્ષણ થાય છે તેની પણ કઈ મહત્વની ભૂમિકા હશે. જ્યારે દિવાસળી બાકસની ધાર સાથે ઘસાય છે ત્યારે ઘર્ષણ દરમિયાન તેને ઉષ્મા ઉર્જા મળે છે, એટલે કે ગરમી મળે છે, અને ગરમી મળતા તે સળગવા લાગે છે. હવે કાગળ જ્યારે એમને એમ હોય છે ત્યારે એ સળગતું નથી, એને બાકસની ધાર સાથે ઘસતા પણ એ સળગતું નથી. પણ જો સળગતી દિવાસળીની નજીક લઈ જઈએ તો એ સળગવા લાગે છે. તે જ રીતે લાકડું છે એ મીણબત્તી પર મૂકતા કદાચ સળગવા ન લાગે તરત, પણ તમે જ્યારે ચૂલા કે સગડીમાં લાકડાનો ઉપયોગ કરો ત્યારે થોડું કેરોસીન કે અન્ય કોઈ પદાર્થ નાખતા હશો તો એ સળગવા લાગે છે. તો અલગ અલગ પદાર્થ અલગ અલગ રીતે સળગવાની શરૂઆત કરે છે. અને જેમ દિવાસળી તરત સળગે છે ઘર્ષણથી, તે રીતે કાગળ નથી સળગતું, લાકડું નથી સળગતું, લોખંડ તો બિલકુલ નથી સળગતું. તો અલગ અલગ પદાર્થોના દહન માટે અલગ અલગ તાપમાનની જરૂર હોય છે. જો તેને યોગ્ય તાપમાન મળે તો જ તે સળગી શકે. તો હવે આપણને ખબર પડી કે દહન માટે ઓક્સિજન તો જરૂરી છે જ, પણ સાથે સાથે યોગ્ય તાપમાન પણ જરૂરી છે. તો દહન માટે જે જરૂરી તાપમાન છે, ઓછામાં ઓછું જરૂરી તાપમાન છે
એને કહેવાય તેનું જ્વલન બિંદુ. જ્વલન થવું એટલે કે સળગવું એટલે કે દહન થવું. તો જ્વલન માટે જે ઓછામાં ઓછું એટલે કે નીચામાં નીચું તાપમાન જરૂરી હોય એ તાપમાનને જે તે પદાર્થનું જ્વલન બિંદુ કહેવાય. જો આપણે વ્યાખ્યા સમજીએ. જ્વલન બિંદુ જે નીચામાં નીચા તાપમાને પદાર્થ સળગે છે તે તાપમાનને તેનું જ્વલન બિંદુ કહેવાય. તેનું એટલે જે તે પદાર્થનું જ્વલન બિંદુ કહેવાય. અલગ અલગ પદાર્થના જ્વલન બિંદુ અલગ અલગ હોય છે. જેમ કે કેરોસીનને થોડું ગરમ કરીને તો એ સળગવા માંડે, પણ લાકડાને થોડુંક ગરમ કરીએ તો એકદમ ના સળગે. એનો અર્થ એ થયો કે કેરોસીનને જ્યારે આપણે સાચવીને મૂકવાનું થાય ત્યારે વધારે સાવચેતીની જરૂર છે. બરાબર ને? હવે એવા પદાર્થો કે જેમનું જ્વલન બિંદુ ઓછું છે એમનો આપણે બળતણ તરીકે ઉપયોગ કરીએ. જેમ કે કેરોસીન છે, પેટ્રોલ છે, ડીઝલ છે. આ સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં આવતા બળતણ છે. એલપીજી છે, સીએનજી છે, આ બધા જ પદાર્થોનું જ્વલન બિંદુ ઓછું છે. એ નીચા તાપમાને સળગવા લાગે છે અને આપણને ઉર્જા આપે છે. હવે આપણે એક પ્રયોગ કરીએ જેમાં આપણે કાગળને મીણબત્તી પર મૂકીને સળગાવીએ, પણ બે અલગ અલગ પરિસ્થિતિમાં. અને આ જ્વલન બિંદુ કેવી રીતે અહીંયા કામ કરે છે ને એ તમારે ધ્યાનથી અવલોકન કરવાનું છે. જો અહીં બે કાગળ લઈએ, બરાબર, અને એ બંનેને આપણે મીણબત્તી પર સળગવા મૂકીએ છીએ. જો કેવી રીતે. સૌથી પહેલા હું આ કાગળની ગળી વાળું છું. અને એક કપ જેવું તૈયાર કરું છું. હવે આપણે તેને સળગતી મીણબત્તી પર મૂકીએ. જો આને હું ચીપિયાની મદદથી પકડીને મૂકીશ. સાવચેતીથી પ્રયોગ કરવો જરૂરી છે. જો કાગળ તરત સળગવા લાગ્યો. જો હવે આપણે બીજું એક કાગળ લઈએ, એની પણ આ રીતે ગળી વાળીએ. હવે એમાં તેને પકડીને થોડું પાણી ઉમેરીએ. જો તમે જુઓ, અહીંયા હું થોડું પાણી ઉમેરું છું અને હવે તેને આપણે ગરમ કરીએ. જો થોડી વાર સુધી મૂક્યા પછી પણ એ સળગવા નથી લાગતો. આવું કેમ થયું? તમે જોયું કે જ્યારે આપણે માત્ર કાગળને મીણબત્તી પર મૂક્યું તો સળગવા લાગ્યું, પણ જ્યારે તેમાં થોડું પાણી ઉમેરીને પછી તેને મીણબત્તી પર મૂક્યું તો એ તરત સળગતું નથી અને સળગ્યું જ નહીં. તમને થોડી કાળાશ દેખાઈ પણ એ સળગ્યું નહીં. આવું કેમ થયું? જો હમણાં જ આપણે જ્વલન બિંદુ વિશે શીખ્યા કે કોઈ પણ પદાર્થને નીચામાં નીચું તાપમાન જોઈએ સળગવા માટે, એટલું મળે એટલે સળગવા લાગે. આપણે બંને વખતે કાગળ લીધેલું. પહેલી પરિસ્થિતિમાં કાગળ સળગ્યું કારણ કે તેને જ્વલન બિંદુ જેટલું તાપમાન મળ્યું હશે. પણ બીજી પરિસ્થિતિમાં આપણે શું કરેલું? એમાં થોડું પાણી ઉમેર્યું. હવે જ્યારે આપણે એમાં પાણી ઉમેરીને પછી મીણબત્તી પર મૂક્યું તો મીણબત્તીમાંથી આવતી જે ગરમી કે ઉષ્મા છે અથવા તો ઉર્જા છે એ કાગળને મળી અને ત્યાર પછી એ ઉર્જા તેમાં રહેલા પાણીને પણ મળે છે. અને તેથી કાગળનું તાપમાન જેટલું તેને સળગવા માટે એટલે કે તેનું જ્વલન થવા માટે જેટલું તાપમાન જોઈએ એટલું મળતું નથી. કેમ? કારણ કે એને જે તાપમાન જોઈએ છે અથવા એને જે ઉર્જાની જરૂર છે એ ઉર્જા પાણી શોષી લે છે. એટલે કાગળને જ્વલન બિંદુ જેટલું તાપમાન પહોંચતું નથી, એટલે સળગતું નથી. બરાબર? તો હવે તમે જ્વલન બિંદુ બરાબર સમજ્યા હશો. જે પદાર્થો નીચા તાપમાને તરત સળગવા લાગે એવા પદાર્થોને કહેવાય જ્વલનશીલ પદાર્થો. જો આપણે તેની વ્યાખ્યા જોઈએ. જે પદાર્થનું જ્વલન બિંદુ નીચું હોય અને તે જ્યોત વડે સરળતાથી આગ પકડી લેતા હોય તેવા પદાર્થોને જ્વલનશીલ પદાર્થો કહેવાય.
આવા જ્વલનશીલ પદાર્થો કયા કયા છે? લાકડું છે, કોલસો છે, એલપીજી છે, સીએનજી, પેટ્રોલ, ડીઝલ, કેરોસીન, જેનો આપણે બળતણ તરીકે ઉપયોગ કરીએ છીએ, એ બધા જ જ્વલનશીલ પદાર્થો છે. હવે આ જ્વલનશીલ પદાર્થો આપણને બળતણ તરીકે ખૂબ ઉપયોગી છે, પણ જો આપણે તેના ઉપયોગમાં થોડી લાપરવાહી રાખીએ તો એ આગ પણ લગાડી શકે છે. અને તમે ક્યાંક ને ક્યાંક આગ લાગેલી ક્યારેક જોઈ હશે, પ્રત્યક્ષ નહીં તો તમે ક્યાંક ટીવીમાં પણ જોઈ હશે, બરાબર ને? તો આવા પદાર્થોનો બળતણ તરીકે ઉપયોગ હંમેશા સાવચેતીપૂર્વક કરવો જોઈએ. કદાચ આપણે જો બેધ્યાન રહીએ અને આગ લાગી જાય તો શું કરવાનું એ હું તમને આવતા ભાગમાં સમજાવીશ. ત્યાં સુધી તમે આ દહન, જ્વલનશીલ પદાર્થો, જ્વલન બિંદુ એના વિશે વધારે માહિતી મેળવજો, કેટલાક પ્રયોગ પણ કરી જોજો, પણ તમારા વડીલોની હાજરીમાં, અને તમે તેને ધ્યાનથી સમજજો. આવતા ભાગમાં આપણે આગ કેવી રીતે લાગે છે અને તેને બુઝાવવા માટે શું કરી શકાય તેના વિશે શીખીશું. આવજો. नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने इकाई 6 भरत का अध्ययन किया, उसका नाट्यकरण भी यहाँ पर देखा और विशेषण का भाषा में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है ये हमने देखा है. आज यहाँ पर हम लिंग परिवर्तन के कुछ नियम हैं या पुल्लिंग शब्दों का किस प्रकार से स्त्रीलिंग में परिवर्तन होता है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे. इससे पहले भी आपने इकाई 3 के अंदर भाषा सज्जता के तहत लिंग परिवर्तन के कुछ नियमों के बारे में जाना है, समझा है. आज हम भरत इकाई में हमें जो नए शब्द दिए गए यानी कि पुल्लिंग में से इन शब्दों का स्त्रीलिंग में किस प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है या होता है, या ऐसे कौन से प्रत्यय हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्दों के रूप में परिवर्तन लाते हैं. तो ऐसे भी कई सारे शब्द हैं कि जिनका पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग भिन्न भिन्न तरीकों से होता है. तो इनकी जानकारी आज हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे. तो देखिए, आप एक शब्द देख रहे हैं, आपको ये शब्द पढ़ना भी है और साथ ही साथ इसका अर्थ भी आपको पता होना चाहिए. जैसे कि सुत, और उसका स्त्रीलिंग होता है सूता. प्रिय तो प्रिया. आचार्य तो आचार्या. छात्र यानी कि पुल्लिंग के लिए छात्र, लेकिन स्त्रीलिंग के लिए हाँ आपको पता है छात्र तो छात्रा. यहाँ पर भी आप ये देख रहे हैं और साथ ही साथ हमें ये समझना भी है कि इन शब्दों की ऐसी तो क्या विशेषता है. जैसे कि सुत है तो अ है और वहाँ पर सूता तो आ किया गया. इसी प्रकार से प्रिय तो वहाँ पर प्रिया यानी कि पुल्लिंग में प्रिय अ जुड़ा हुआ है, लेकिन जब स्त्रीलिंग करते हैं तो अ का क्या हो जाता है, आ हो जाता है. आइए कुछ और उदाहरण भी देखते हैं. इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में आ जोड़ने से हमें स्त्रीलिंग शब्द मिलते हैं. एक उदाहरण वही हम यहाँ पर दोहरा रहे हैं, आचार्य तो आचार्या, लेकिन यहाँ भिन्न रंग से आपको ये दिखाया गया है कि आचार्य, जब आचार्य बोलते हैं तो अंत में हम अ बोलते हैं, और जब आचार्या बोलते हैं तो अंत में हम आ बोलते हैं. यानी कि यहाँ पर अ का आ करने से हमें उस पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग शब्द मिलता है. जैसे कि छात्र तो छात्रा. तो ये हमें समझना है. और इसी प्रकार से जब हमें पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग में शब्दों को परिवर्तित करना है तो ये बात हमें ध्यान में भी रखनी है. आइए दूसरे कुछ शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं. जैसे कि टोकरा, और ये पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग होता है टोकरी. टोकरा और टोकरी. तो यहाँ पर भी आपको अब अपने आप ये समझने का प्रयत्न करना है कि भाई इन शब्दों में ऐसे कौन से परिवर्तन हुए कि जिससे हमें पुल्लिंग शब्दों की जगह पर स्त्रीलिंग शब्द मिलते हैं, या हम पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग में इन शब्दों को परिवर्तित कर सकते हैं. दूसरा जो शब्द है
दास, अब इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? दासी। सखा, सखी। मटका, तो मटकी। यहाँ पर भी विद्यार्थी मित्रों आप देख रहे हैं कि जो पुल्लिंग शब्द है और जब उनका स्त्रीलिंग में परिवर्तन होता है, कौन सा परिवर्तन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ये समझ हमें बनानी है। यहाँ पर हमने जो उदाहरण देखे जैसे कि टोकरा, मटका, सखा, तो यहाँ पर हर एक शब्द में आपने देखा कि शब्दों के अंत में एक प्रत्यय जोड़ा गया, और कौन सा प्रत्यय था? वह ई, यानी कि सखा, तो आ बोलते हैं, लेकिन जब उसका लिंग परिवर्तन हुआ तो क्या हो गया? सखी। दास, तो दासी। मटका, तो मटकी। यानी कि इन शब्दों के अंत में हमने ई प्रत्यय जोड़ा और इस प्रकार से उस शब्द का परिवर्तन हुआ। जैसे कि कटोरा, तो यहाँ पर उसका क्या होगा? कटोरी। जैसे कि यह है रस्सा, तब क्या होगा? हाँ, रस्सी। बहुत अच्छा है। आइए कुछ और उदाहरण भी देखते हैं। तो मोर, अब सोचिए जरा, इसका लिंग परिवर्तन यानी कि पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग अब क्या होगा? तो आपको पता है, मोर तो मोरनी। शेर, तो शेरनी। ऊंट, क्या इसका लिंग परिवर्तन आपको पता है? हाँ, क्या होगा? ऊंटनी। ऊंट तो ऊंटनी। मजदूर, तो मजदूरनी। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि मोर, शेर, ऊंट, मजदूर, इन सारे शब्दों के पीछे एक शब्दांश जुड़ा गया है। जैसे कि मोर तो मोरनी, शेर शेरनी, ऊंट ऊंटनी, मजदूर मजदूरनी, और इस प्रकार से इन शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द हमें मिलते हैं। अब आप इस परिभाषा से अवगत हो गए हैं कि पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। लेकिन ये हर एक शब्द के लिए सही बात नहीं है, या हर एक शब्द का आप इस प्रकार से स्त्रीलिंग नहीं कर सकते। जिन शब्दों के साथ इस प्रकार से परिवर्तन होता है ये भी हमें समझ होनी चाहिए और ये हमें समझना भी है। जैसे कि यह है बिल और उसका लिंग परिवर्तन होगा बिलनी। जैसे कि सिंह तो सिंहनी। इन प्रकार के शब्दों का जब हम पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग करते हैं तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है। आइए और भी उदाहरण देखते हैं। इस शब्द से आप परिचित हैं, पुजारी। अब इस शब्द का अगर हमें स्त्रीलिंग करना है तो इस शब्द में कौन से परिवर्तन हम करेंगे या हमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग करना चाहिए? पुजारी का होगा पुजारिन, है ना। इसी प्रकार से दूसरा जो शब्द है नाग, तो क्या होगा? आप खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, हाँ नागिन। अब और माली तो मालिन। आप खुद भी बोलते जाइए, जुड़ते जाइए। पड़ोसी, आपके आस पड़ोस में जो भी व्यक्ति रहता है हम उसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं कि मेरे पड़ोसी है, लेकिन भाई पड़ोसी है, लेकिन अगर बहन पड़ोसी है तो क्या कहेंगे? हाँ, अब इसी प्रकार से पड़ोसिन, है ना। तो हमने यहाँ पर भी इन उदाहरणों के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर हर एक शब्द के पीछे क्या लगा, कौन सा प्रत्यय जुड़ा। देखते हैं कौन सा जुड़ा, इन प्रत्यय, यानी कि इस प्रकार के पुल्लिंग शब्दों के पीछे इन प्रत्यय जोड़ने से हमें स्त्रीलिंग शब्द या स्त्रीलिंग मिलते हैं। फिर से एक बार इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए एक और दो उदाहरण से। जैसे कि सांप, ये पुल्लिंग शब्द है और उसके पीछे इन प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या होगा? सांपिन, है ना। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। इसी प्रकार से सुनार, गहने बनाने के लिए आप सोनी के पास, गुजराती में हम सोनी बोलते हैं लेकिन हिंदी में इसके लिए शब्द प्रयोग होता है सुनार। सुनार के पास जाते हैं और उसकी जो घरवाली है या उसकी जो पत्नी है उसके लिए शब्द प्रयोग स्त्रीलिंग होगा सुनारिन, है ना। तो हर एक जगह पर जब आप शब्द का उच्चारण करते हैं, जब बोलते हैं, तब आपको ये एहसास होता है, पता चलता है कि शब्द के अंत में इन बोला जाता है, सुनारिन, सांपिन। तो हमें यहाँ पर ये बात समझनी है। तो इन शब्दों का
जब हम पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग करते हैं तो इस प्रकार से किया जाता है। अन्य शब्दों के बारे में देखते हैं। यहाँ पर पहले ही आपको ये बताया गया है, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके पीछे आइन प्रत्यय जोड़ा जाता है। हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो आइन प्रत्यय जब जोड़ते हैं तो जरा सोचिए, ऐसे कोई शब्द आपको पता है क्या? जब मैं आपको यहाँ पर उन शब्दों के बारे में बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ये तो हमें पता है, हम इन शब्दों से परिचित हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके पीछे आइन जोड़ने से हमें स्त्रीलिंग रूप मिलता है। जैसे देखिए जरा, एक शब्द है पंडित। अब पंडित के पीछे हमें आइन प्रत्यय जोड़ना है, तो बताइए जरा, आप खुद ये शब्द बना सकते हैं। यानी कि पंडित का स्त्रीलिंग अब क्या होगा? हाँ, आप सही है, पंडिताइन। क्या होगा? पंडित का पंडिताइन। इसी प्रकार से एक और शब्द है ठाकुर। और अब तो हमें क्या जोड़ना है पता चल गया है कि भाई ठाकुर के पीछे हमें कौन सा प्रत्यय जोड़ना है? आइन। तो अब क्या होगा? ठकुराइन। तीसरा एक शब्द है गुरु, उसके पीछे आइन प्रत्यय जोड़ना है, तो कौन सा स्त्रीलिंग रूप मिलेगा? हाँ, गुरु आइन। तो ये स्पष्ट रूप से हम समझ सकते हैं कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके पीछे आइन प्रत्यय जोड़ने से हमें पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग शब्द मिलते हैं। कुछ और भी उदाहरण देखते हैं। जैसे कि एक शब्द यहाँ पर दिया गया है डिब्बा। अब डिब्बों से तो आप परिचित हैं, लेकिन जब बड़ा होता है तो उसके लिए शब्द प्रयोग होता है डिब्बा। लेकिन आपके घर में डिब्बे छोटे छोटे भी होंगे, है ना? तो उसके लिए हम जब स्त्रीलिंग की बात करते हैं तो कौन से शब्द का प्रयोग होना है या हमें करना चाहिए? जरा सोचिए। डिब्बा पुल्लिंग शब्द है और उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? हाँ, क्या होगा? डिबिया। तो यहाँ पर भी अब आप इस परिभाषा से ये समझ सकते हैं कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिन शब्दों के अंत में, यानी कि हमें बार बार याद रखना है कि हम यहाँ पर जिन शब्दों की बात कर रहे हैं वे सारे पुल्लिंग शब्द हैं। और यहाँ पर इस उदाहरण में हमें यह समझना है कि जो पुल्लिंग शब्द है उस शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो बोला जाता है आ, यानी कि डिब्बा। और डिब्बा का हमें पीछे एक प्रत्यय जोड़ना है। कौन सा जोड़ना है? या। और डिब्बा आ की जगह पर इया जोड़ना है, तो क्या होगा? डिबिया। तो इस प्रकार से हम पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग में शब्द को परिवर्तित कर सकते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि बंदर। तो बंदर का क्या होगा? बंदरिया। कुत्ता, कुत्ते से तो आप भली भांति परिचित है। और यहाँ पर भी आ है और उसका क्या होगा? कुतिया। यानी कि कौन सा शब्दार्थ जोड़ते हैं? या जोड़ते हैं, तो हमें इस प्रकार के स्त्रीलिंग शब्द मिलते हैं। यहाँ पर भी आपके लिए रोचक बात रख दी गई है कि कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिनका उच्चारण करते हैं तो पीछे अक आता है। अब आपको ये सोचना है कि ऐसे कौन से शब्द हैं कि अंत में क आता है, और जब इनके पीछे हम अक का इका करते हैं तो हमें पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग के रूप मिलते हैं। सोचिए जरा, जैसे कि एक शब्द यहाँ पर है नायक, है ना? यहाँ पर पीछे अक, जब बोलते हैं नायक अक, और उसका हमें क्या करना है? हाँ, इका। तो अब हमें स्त्रीलिंग रूप मिलेगा नायिका, नायक, नायिका। उसी प्रकार से गायक, गायिका, बालक तो बालिका। विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पर भिन्न भिन्न शब्दों का पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग किस प्रकार से हो सकता है उसके कुछ उदाहरण देखे, लेकिन इसका ज़्यादा अभ्यास करना आवश्यक है आपके लिए। और जब भी हमें इस प्रकार के शब्दों के बारे में स्वाध्याय या प्रश्न पूछे जाए तब हम सरलता से इनका लिंग परिवर्तन किस प्रकार से कर सकते हैं यह हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। और अगर हमें अच्छी तरह से या सरलता से इन शब्दों का लिंग परिवर्तन सीखना है, करना है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास भी करने चाहिए। और दूसरी बात कि जब हम
लिंग परिवर्तन करके शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो पूरे वाक्य में भी कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं या होते हैं, तो ये भी हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कुछ शब्दों के ही उदाहरण देखे। अब आपको अपनी किताब में ऐसे कई सारे शब्द हैं, या आप जब रोजमर्रा की शब्दावली में बातचीत करते होंगे तब भी आपको ऐसे कई सारे शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना पड़ता होगा, बोलने पड़ते होंगे। तो अब आपको ये खुद सोचना है कि ऐसे कौन से शब्द हैं कि जिनका लिंग परिवर्तन अगर मुझे करना है तो मुझे किस प्रकार से करना चाहिए, या मैं जब शब्दों का उच्चारण करता हूं तो अंत में मैं क्या बोलता हूं, अ बोलता हूं, आ बोलता हूं, या यह पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है, उसकी पहचान भी हमें करनी चाहिए, होनी चाहिए, ताकि हम सरलता से लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अब आप बिल्कुल सरलता से किसी भी शब्द का लिंग परिवर्तन कर सकेंगे, और इसकी ज़्यादा समझ के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास भी करेंगे। धन्यवाद।